Okay, I'll hide the panel. Yeah, that's good. All right, so this is redox titrations. बेसिक थ्योरी अतुल भैया ने कराई दी है. आज ही क्लास में क्वेश्चन करने हैं, टाइम पास करने हैं बेसिकली. It is revision of stoichiometry. Actually, it is a good time to start this topic. तो जिन जिन लोगों ने stoichiometry नहीं करा था, in this way we can recall stoichiometry. Right, नितिन, जो भी लोग हैं, जिन्होंने अभी थोड़ा बहुत they've started, and there are some people who had started a month ago or 2 months ago. Make sure कि सब लोगों को ना stoichiometry की videos जो हैं वो available हो जाएं. So all of you guys should contact नितिन भैया. He will make sure कि तुम्हें जो है वो videos मिल जाएंगी. Right, so we're starting with redox reactions. उन videos को देख लेना, और कोई doubt होगा तो we are always there to discuss those doubts. जी, तो redox reactions की बात करते हैं. So this is a very simple topic. It is extension of stoichiometry. I'll straightforward start with redox titrations. Basic theory की बात हो चुकी है. I'll start with questions, right? So I'll straightforward write a question. 20 ml of H2O2 is required right to titrate 30 ml of m by 10 KMnO4, right? So the link to the online whiteboard is bit.ly/ABL AB lectures OWB online whiteboard 2022B. So you click on this and I think this window will open. और जो अतुल भैया ने जो पढ़ाया था, मैंने वो वाले लिंक्स भी यहाँ डाल दिए, वो वाले नोट्स भी इसमें डाल दिए. I put in here itself at a single place, right? So this is the link. You can go here, bit.ly ABLOWB2022B. The standard link, it will never change, right? 30 ml of m by 10 KMnO4 solution. Can I have a bit more space? Yeah, this should be good. So I'm using this space, yes. So 20 ml of m by 10 KMnO4 solution. In acidic medium, that is given to you. Find the strength of H2O2 solution. Right. That is given to you. Now, if we go back to the titration part, what was titration? If we try and talk about, so what was titration? So titration में we talked about acid base titration, if you remember by any chance. हमने stoichiometry में acid base titration करी थी, और याद नहीं भी है तो इस बहाने याद हो जाएगी. It is kind of revision happening, right? So we talked about acid base titration. What was acid base titration? की जी लंबी सी पीरियड है, केमिस्ट्री की लैब में गलती से कोई पदार्पण करो तो पहले तो सबसे पहले बदबू आती है ना जी. तो ये लंबी लंबी ट्यूबें टंगी होती हैं लैब के अंदर, है ना जी. उसके नीचे लगा होता है ये एक कांच का ग्लास लगा होता है, बढ़िया सा एकदम कर्व्ड ग्लास, तोड़ने में बहुत मजा आता है, राइट? वी कॉल दिस एज टाइट्रेशन फ्लास्क. दिस इज योर टाइट्रेशन फ्लास्क. सो द पीपल जिनकी वीडियोस ऑन नहीं है, मुझे पता नहीं क्यों ऑन नहीं है ना. मतलब मुझे लगता है कि इसकी वीडियो मैं दे ही देता हूँ बाय डिफॉल्ट, क्लास के एंड में अपलोड कर ही देता हूँ. तो in case you don't want to, you don't feel like being part of live class, it is perfectly fine. You can just switch off and watch a movie. That is better actually. और वो कुछ गलत नहीं है उसमें, मतलब there is nothing wrong, right? It is perfectly fine. तो मुझे तो कोई मतलब the whole purpose of you know this class happening is that you learn how to do self study. तो मुझे तो बहुत इरिटेशन होती है कोई पढ़ाए तो इट इज़ वेरी इरिटेटिंग फॉर मी कि जी आप मत पढ़ाओ जी, हम खुद ही निकाल लेंगे. सो माय फंडा इज कि जी हम खुद ही कर लेंगे ना, आपकी जरूरत नहीं है हमें. आप बता दो कौन सा टॉपिक करना है और खुद करके निकाल लेंगे खुद से.
कौन से क्वेश्चंस करने हैं बता दो इवेंचुअली, क्वेश्चन 10 ईयर के करने हैं तो 10 ईयर्स के क्वेश्चन करने हैं, तो वी विल मेक श्योर दैट वी आर गुड इनफ, वी आर केपेबल इनफ टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ 10 ईयर्स एंड विल डू इट ऑन आवर ओन, नॉट अ प्रॉब्लम। हाँ, सो देयर वाज अ बैचमेट ऑफ माइन जो है, जो ही वाज ऑल इन रैंक 8, है ना, आई डेली कंप्यूटर साइंस। अब तो यूएस में गूगल, मैंने गूगल छोड़ दी, उसमें पसंद नहीं आई। Then he joined Airbnb. No, then he joined Pinterest. Then he went back to Google, and then right now he's in Pinterest, I think. या Airbnb, I don't remember. बहुत टाइम हो गया है, आज फोन करूंगा उसे, गालियाँ सुनाऊंगा। Right, it has been a while. So it's 30 ml of M by 10 KMNO4. So the idea is कि वो मतलब correspondence course से he is already rank 8, वो भी ऐसी। तो देखो क्या कहानी होती है ना कि इंटेलिजेंट लोगों को बहुत परेशानी होती है कि उनको कोई पढ़ा रहा है, क्या जरूरत है, मतलब हम उससे आधे टाइम में वो सारा काम कर लेंगे, और आधे टाइम में सारा काम कर लेंगे, बाकी आधा टाइम पैर फैला के सोएंगे, क्या परेशानी है? Why will you listen to somebody else? That's the whole idea. Everybody loves wasting time, right? So we need to get that time to waste. So how will we find time to waste? By putting effort on our own. तो यहाँ 6 घंटे मेरी बकवास सुनोगे, उससे खुद ही खुद खाद कर दिया, चीजों कर लिया, मॉड्यूल पढ़ लिए, थोड़ा बहुत थ्योरी पढ़ ली, क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया, AIEEE क्वेश्चन दे रखे मॉड्यूल के एंड में, IIT क्वेश्चन दे रखे, वो तुमसे हो गया, इसका मतलब तुम्हारी प्रिपरेशन कल क्लियर है, खत्म हो गई बात, मूव फॉरवर्ड। राइट, द होल आइडिया ऑफ कमिंग टू द क्लास इज टू लर्न हाउ टू डू सेल्फ स्टडी। राइट, तो खुद से पढ़ना बहुत जरूरी है, खुद से एफर्ट पुट करना बहुत जरूरी है। सो वी आर हैविंग अ क्लास ऑन ट्यूसडे टुडे। आई हैव ऑलवेज सेड दैट मंडे डिफाइंस योर लर्निंग, राइट, है ना? तो अब तुम खुद से सोच लो, मैं हाथ बात नहीं दिख रहा हूँ, 4 घंटे कितने लोग बैठे थे? 4 घंटे और 2 घंटे की सिटिंग मिनिमम बोली थी मैंने, शायद 7 घंटे की सिटिंग बोली थी कि मंडे को ये 2 सिटिंग्स होनी चाहिए। दिस विल डिफाइन एंड दिस हैज टू बी ऑन अ टेबल एंड अ चेयर, है ना? ये नहीं जी पैर फैला के सो रहे हैं जी बिस्तर पे हेडफोन लगाकर, किसी नए गाने आए हैं उससे कंसंट्रेशन बढ़ता है ना? वैसे अगर हेडफोन ना लगाए तो मम्मी पापा की लड़ाई सुनने को मिलती है, उससे तो गाने सुन लो, है ना? बात में लॉजिक तो है, ऐसी बात नहीं है ना? पर मतलब मेरे को लगता है हम अपने मन को समझा रहे हैं। Right. So what was titration? Acid-based titration. So you took 30 ml of MBET and came for भाड़ में KMNO4. Let's say we took H2SO4. We took an acid. Acid generally मैं लाल से बनाता हूँ, पियोगे तो खून निकलेगा, पेट से बाहर निकलेगा. So we take H2SO4, sulfuric acid. Structure की बातें कर रखी हैं, तो this is a very good time to actually do you know redox reactions. तो कि हमने जी पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर्स देख लिए, बॉन्डिंग में स्ट्रक्चर्स देख लिए, तो उससे अब ये टॉपिक आसान हो गया है। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय डिफॉल्ट वेरी इजी, एंड लेट्स से वी टेक 20 ml of NaOH, है ना? 20 ml ऑफ H2O2 इज रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर हमने NaOH डाल दिया, तो ड्रिप ड्रिप करके NaOH यहाँ पे आ रहा है ना? यहाँ हम कुछ मैजिकल सी बूंदे डाल देंगे, उन मैजिकल बूंदों का नाम रखेंगे फिनोफ्थलीन, याद है? इंडिकेटर कि जी वो आवाज लगाएगा, बाहर चाय पीने चले गए, यहाँ पर काम हो गया है ना? इधर दैट विल बी फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज और मिथाइल रेड। देयर आर n टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, है ना? तो परेशान नहीं होना जी, और कौन कौन से होते हैं, अरे जो होंगे वो आ जाएंगे। नहीं आप ढंग से ना पढ़कर आए हो तो धोखा हो गया फिर तो तेरे साथ, कूद जा फिर तो, फायर ईयर, हाँ? तो रोना पिटना नहीं है, रोगे पिटोगे तो और रुलाऊंगा और फिर हंसूंगा उसके बाद, है ना जी? तो चल रही कहानी। सो ऊपर से हम क्या डाल रहे हैं? NaOH, ये चल रही कहानी। सो वी आर पुटिंग NaOH फ्रॉम द टॉप, है ना जी? एंड नीचे नीचे हमने क्या डाला हुआ है? एसिड डाला हुआ है। देन वी सेड कि व्हाट वाज द बेसिक पोस्टुलेट और बेसिक रिक्वायरमेंट और द बेसिक कंडीशन फॉर न्यूट्रलाइजेशन। सो वी सेड कंडीशन फॉर न्यूट्रलाइजेशन was that milli equivalents of acid, gram equivalents or milli equivalents of acid will be equal to gram equivalents और milli equivalents of base। ये कहानी चल रही है। ये क्यों आया था? बिकॉज जितने मिली इक्विवेलेंट्स एसिड के होंगे, है ना, जितने मिली इक्विवेलेंट्स एसिड के होंगे उतने ही मिली इक्विवेलेंट्स H प्लस के होंगे, ये आया था, है ना? ये कैसे आया था? क्योंकि हमें पता है कि जी एसिड में कहीं ना कहीं उसके रिएक्शन में H प्लस आएगा, जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा, प्लस सम एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आएगा, प्लस आयन आएगा, और उसके साथ भी कुछ लगा होगा। ये कहानी क्लियर है? फिर हमने रिएक्शन में देखा था कि जितने मिलीग्रेंट्स इसके हैं, अगर इसके रिएक्शन में x मिलीग्रेंट्स यूज हुए हैं, तो फॉर श्योर H प्लस के कितने मिलीग्रेंट्स आएंगे? x। फॉर श्योर इस आयन के भी कितने मिलीग्रेंट्स आएंगे? x। ये प्रॉपर एग्जांपल से करा था हमने देखकर, गो एंड रिवाइज,
राइट। और जिन लोगों ने नई क्लास देखी है, डोंट वरी, ऐसा होता है कि जितने मिलीकरेंट्स इसके आते हैं उतने मिलीकरेंट्स के आते हैं, तभी तो मिलीकरेंट बनाए थे, फंडा ये था मिलीकरेंट बनाने का कि सब सेम आए। और इसका इनफैक्टर वन है H प्लस का, ये करा था। तो जितने इसके मिलीकुलेंट हैं उतने ही क्या है, मिलीमोल्स हैं। सेम नौटंकी थी बेस में, कि बेस में क्या आएगा, कुछ पॉजिटिव आयन आएगा, आयन नेगेटिव, है ना, और यहाँ होगा पॉजिटिव आयन, आयन पॉजिटिव, और साथ में कुछ, साथ में क्या आएगा, OH माइनस, दैट वाज बेस। सेम नौटंकी। तो अगर हमें पता है कि इसके एक्स मिली इक्विवेलेंट्स यूज हुए हैं, तो इसके भी एक्स आने वाले मिली इक्विवेलेंट्स आयन के, और H प्लस के भी, OH माइनस के भी एक्स मिली इक्विवेलेंट्स आने वाले हैं। और इसका इनफैक्टर क्या है, 1। तो यहां से आ गया था कि एक्स मिली इक्विवेलेंट है, तो इसका मतलब जी एक्स ही मिली मोल्स है। ये कहानी आ रही थी, है ना। तो हमने कहा था अगर ये दोनों बराबर कर दोगे, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली, इसका क्या मतलब है कि जो इससे H प्लस आ रहा है, मैं मिली इक्विवेलेंट डील कर रहा हूँ, मैं ग्राम इक्विवेलेंट लिख रहा हूँ, आई लाइक टू राइट मिली इक्विवेलेंट्स। तो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ H प्लस इसके बराबर होगा, और मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ OH माइनस इसके बराबर होगा, है ना जी। जितने ये मिली इक्विवेलेंट है उतने भी इसकी मिली इक्विवेलेंट है, और अगर ये दोनों बराबर है तो ये दोनों ही बराबर होंगे, राइट। और क्योंकि इसका इन फैक्टर 1 है, तो जितने मिली इक्विवेलेंट है उतने ही क्या है हमारे पास, मिली मोल्स ऑफ H प्लस, और उतने ही क्या है हमारे पास, मिली मोल्स ऑफ OH माइनस। और अगर ये दोनों बराबर है तो ये दोनों बराबर है। एंड दिस वाज द प्रिसाइज कंडीशन फॉर न्यूट्रलाइजेशन, दिस वाज द प्रिसाइज कंडीशन फॉर न्यूट्रलाइजेशन, प्रिसाइज रिक्वायरमेंट और ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, राइट। ये ऐसे क्यों आई थी, ये रिएक्शन से आई थी। ये क्यों आई थी, बिकॉज H प्लस, हमने कहा था एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस विल टुगेदर मेक H2O लिक्विड। ये नौटंकी नौटंकी आई थी, अगर याद हो, है ना। तो हमने कहा था अगर पानी बनाना है, पानी बनाना है, तो जितने मिली इक्वलेंट्स, यहां से आ रहा है, जितने मिलीमोल्स इसके होंगे उतने मिलीमोल्स अगर इसके होंगे तो पानी बन जाएगा उतने मिलीमोल्स। अगर 5 मिलीमोल इसके हैं तो 5 मिलीमोल इसके लिए, तो पानी बन जाएगा, खत्म। पानी में अगर H प्लस एसिड ज्यादा होगा, है ना, तो ये एसिडिक हो जाएगा पानी। अगर OH माइनस ज्यादा होगा तो वो बेसिक हो जाएगा। ये याद है कहानियां, याद है कहानियां। तो हमने कहा था जी अगर आपको न्यूट्रलाइजेशन की कंडीशन की बात करनी है, आई कैन जस्ट ट्राई एंड रिड्यूस द साइज, तो बेस्ट तरीका क्या है कि आप दोनों के एसिड और बेस के मिलीकरण बराबर कर दो, क्योंकि ये बराबर करते ही ये इंश्योर हो गया कि दोनों के H प्लस जो इससे आ रहा है उसके, और इससे जो OH माइनस आ रहा है उन दोनों के मिलीकरण बराबर है। अगर मिलीकरण बराबर है तो दोनों के मिलीमोल्स बराबर है। ये कहानी करी। सो वी सेड विल जस्ट सिंपली, यू नो विल सिंपली, क्या कहते हैं, विल सिंपली ऐड और विल सिंपली इक्वेट द मिलीकुलेंट्स। अब यहाँ कर लेते हैं। यहाँ पर अब हमारे पास कितने मिलीकुलेंट्स हैं, हाउ मेनी मिलीमोल्स डू वी हैव, सो वी हैव हाउ मेनी मिलीमोल्स, वी हैव m by 10 into 30, we have 3 millimoles। ये क्लियर है। और n फैक्टर क्या है इसका, इसमें 2 H प्लस निकलते हैं, तो अगर इसमें 2 H प्लस निकलते हैं तो टुकड़े 2 करेंगे, हमने ये करा था। टुकड़े करने का फंडा क्या था n फैक्टर का, कि जितने H प्लस निकलते हैं उतने टुकड़े करेंगे, राइट, ताकि हर टुकड़े में एक H प्लस हो, दैट वाज द फंडा। यहाँ टुकड़े इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से होंगे, है ना। जो इन फैक्टर की बातें हुई हैं वो इलेक्ट्रॉन के हिसाब से होती हैं, कि जितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उतने टुकड़े करेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उतने टुकड़े करेंगे। एसिड बेस में टुकड़े कैसे करते हैं, ऑन द बेस ऑफ H प्लस, कि इसके एक मॉलिक्यूल से 2 H प्लस निकले 2 टुकड़े करेंगे। तो इन फैक्टर अगर 2 है तो इसके टुकड़े कितने होंगे, बड़ी बॉल मिलीमोल 3 है तो 6 मिली इक्विवेलेंट आ गए। तो मिलीमोल्स फॉर बिग बॉल्स एंड ग्राम इक्विवेलेंट्स और मिली इक्विवेलेंट्स फॉर स्मॉल बॉल्स। तो अगर 2 टुकड़े कर रहे हैं इसका मतलब 1 मोल में 2 मिली इक्विवेलेंट है, तो 3 मोल में 6 मिली इक्विवेलेंट है, खत्म, राइट। इसका इनफैक्टर क्या है जी, इसमें एक ही OH है, इससे एक ही OH निकलेगा, तो इसका इनफैक्टर 1 है, यानी इसके एक मोल में एक ही मिली इक्विवेलेंट है, राइट। तो अब अगर यहाँ पर 6 मिली इक्विवेलेंट बेस एसिड है सिस्टम में, इफ यू हैव 6 मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड, तो यू नो दैट यू नीड, मैं नीचे लिख देता हूँ, दैट इंप्लाइज इन द अबव क्वेश्चन इंप्लाइज, या यहाँ मैं स्पेस क्रिएट कर देता हूँ जस्ट, है ना, तुम चाहे नीचे लिख लो, बट बिकॉज वो फिर वो कोहेरेंस नहीं रहेगी, सो आई एम जस्ट क्रिएटिंग सम स्पेस। यस, सो we know that न्यूट्रलाइजेशन के लिए कि मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड, they came out to be 6 milli equivalents, implies milli equivalents of base required,
दैट विल बी 6, है ना? तो 6 मिली इक्विवेलेंट्स आ गए, है ना? एम्प्लाइज बेस रिक्वायर्ड कितना है? तो 6 मिली इक्विवेलेंट्स किसके बराबर हो गए? अब इसका इनफैक्टर क्या है? इसका इनफैक्टर 1 है, तो 6 मिली इक्विवेलेंट, तो 6 ही क्या है? मिली मोल्स है। 6 मिली इक्विवेलेंट्स हैं तो 6 मिली मोल्स हैं, ये बात समझ आ रही है? क्योंकि इनफैक्टर 1 है, खत्म। क्योंकि बेस कौन सा है? NaOH, द बेस इज NaOH। तो 6 मिलीमोल आ गए। तो हमें वॉल्यूम चाहिए। अब ये बता रखा है कि इसका कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है? 20 ml रिक्वायर्ड था। तो अब अगर अगर इसका 20 ml रिक्वायर्ड था, ऊपर से अगर हमने 20 ml फेंका था, खत्म। तो समझ आ गया कि 6 मिलीमोल यानी किसमें? 6 मिलीमोल्स इन व्हाट? इन 20 ml। देसी हिसाब चल रहा है। 6 मिलीमोल्स इन 20 ml। या तुम इसका मास निकाल लो, 6 मिलीमोल्स, या यू कैन फाइंड द मास। व्हाट इज द मास? एक का मास 40 होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 40 होता है। सोडियम का 23 है, तुम कैलकुलेट कर लो। सोडियम का 23 है ना? और एक हाइड्रोजन का हो गया और 16 ऑक्सीजन का हो गया, तो 40 हो गया। तो 6 इंटू 4 240, 40 मिलीग्राम आ गया, 240 मिलीग्राम्स। और ये सारा सामान किस में है? इन 20 ml। क्योंकि ऊपर से जो बेस डालना पड़ा, वो कितना डालना पड़ा? 20 ml बेस डालते ही न्यूट्रलाइजेशन हो गई है। ऊपर से 20 ml डालते ही न्यूट्रलाइजेशन हो गई है। इंडिकेटर ने अपना कलर चेंज कर दिया है, यानी पानी में जितने मिली इक्विवेलेंट्स एसिड के थे, उतने मिली इक्विवेलेंट्स ऊपर से किसके डाल दिए गए हैं? बेस के। और ये कितना वॉल्यूम यूज हुआ है? 20 ml। तो अब निकल जाएगा ना, सब कुछ निकल जाएगा। यू कैन फाइंड स्ट्रेंथ, यू कैन फाइंड मोलैरिटी, यू कैन फाइंड नॉर्मेलिटी, जो निकालना है वो निकाल लो, राइट? व्हाट यू वांट टू फाइंड, यू कैन फाइंड आउट। सो यू कैन फाइंड द मोलैरिटी, और यू कैन डायरेक्टली फाइंड स्ट्रेंथ, है ना? या मोलैरिटी निकाल लो। व्हाट इज द मोलैरिटी? तो मोलैरिटी ऑफ NaOH will be how much? It will be how many moles? Millimoles, 6 millimoles upon volume in liters, which is 20 into 10 raised to power minus 3। ये हो गया, ये मोलैरिटी आ गई, है ना? कितनी हो गई? 0.3 मोलर, है ना? और 0.3 मोलर है तो स्ट्रेंथ आ जाएगी, यानी 0.3 मोल्स 1 लीटर में। तो 0.3 मोल्स का मास कितना है? 0.3 इंटू 40 ग्राम्स। और वो मास किस में होगा? उतने में ही होगा जितने में वो मोल थे। ये मोल किस में थे? 1 लीटर में। तो ये ग्राम्स भी किस में होंगे? 1 लीटर में। देसी हिसाब चल रहा है। सो यू शुड नॉट वरी एट ऑल इफ यू डोंट रिमेंबर व्हाट वी स्टडीड। तो 12 ग्राम पर लीटर आ गई स्ट्रेंथ। ये क्या थे? 0.3 मोल्स पर लीटर था। तो एक मोल का वेट कितना है? 40। तो 0.3 मोल का वेट कितना होगा? 12 ग्राम। एक, है ना? तो 0.3 मोल का वेट किस में है? जिसमें 0.3 मोल है। 0.3 मोल किस में है? 1 लीटर में। यू आर जस्ट विजुअलाइजिंग अ सोल्यूशन कि 20 ml में कितने मिलीमोल? 20 ml में 6 मिलीमोल। उसी को बड़ा कर दोगे और वॉल्यूम कितना ले लोगे? 1 लीटर। इक्वलेंटली इसी को बड़ा कर दोगे परसेंटेज वाइज, तो उसमें कितनी मिलीमोल आएंगे? वो हमने रेशियो से निकाल दिया कि 20 में 6 है तो 1000 में कितने। ये तो करा है कि 20 20 में 6 है। ये तो करा है कि 20 इंटू 10⁻³ लीटर्स में 6 इंटू 10⁻³ मोल्स है। ये वॉल्यूम इन लीटर्स है, ये मोल्स ऑफ सोल्यूट है। तो जी 1 लीटर में कितना होगा? 6, it will be 6 into 10⁻³ into 1/20 into 10⁻²। This is all unitary method going on। ये आ गए, ये मोल्स आ गए। ये मोल्स की वैल्यू कितनी आ रही है? 0.3 मोल्स। तो एक इतने लीटर में इतने मोल हैं, तो 1 लीटर में कितने होंगे? यूनिटरी मेथड। ये क्लियर है बात? इज इट क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है इसमें, है ना? फीलिंग आएगी तो 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 20 ml को अगर 1000 ml पे लेकर जाओगे तो ये 50 गुना पानी है। ये 50 गुना पानी है ना? तो 50 गुना पानी 50 गुना समान होगा। अगर इसको यहां से यहां लेकर जाने में, ऐसे देसी हिसाब कर रहे हैं, नॉर्मल मैथ्स। आई वांट यू टू फील दिस। आई डोंट वांट यू टू अप्लाई फॉर्मूले एनी। आई डोंट वांट यू टू अप्लाई एनी फॉर्मूला। कि 50 गुना समान है ना, पानी 50 गुना है, तो 50 गुना समान में 50 50 गुना चीनी के दाने होंगे ना इक्वलेंटली। मिठास सेम रखनी है तो इसको 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने मिलीमोल आ जाएंगे? 6 इंटू 50 कितने हो गए? 300 मिलीमोल आ जाएंगे। देसी हिसाब चल रहा है ये। एक टॉफी 5 रुपए की, 10 टॉफी कितने की? ऑल मेंसुरेशन गोइंग ऑन। 300 मिलीमोल का मतलब कितना हो गया? 0.3 मोल्स। लॉजिक क्लियर है? तो उसको तुमने 1 लीटर में लिया, रिवीजन हुई एक्चुअली स्टोशियोमेट्री की। तो उतना सामान 1 लीटर में है। अब वो सामान तुमने मोल में विजुलाइज नहीं करना, तुमने किसे विजुलाइज करना है? मास के टर्म्स में। तो मल्टीप्लाई कर दो 1 मोल के मास से, तो वही सामान मास के टर्म्स में विजुलाइज हो गया, राइट? तो अब अंडरस्टैंडिंग और बेटर होगी। शायद स्टोशियोमेट्री के जमाने में अंडरस्टैंडिंग इतनी ऑब्वियस नहीं थी, बट नाउ यू हैव डन क्वेश्चंस ऑफ स्टोशियोमेट्री, यू हैव टेकन अ टेस्ट ऑफ स्टोशियोमेट्री,
है ना, बीच में ईटी मीन्स वगैरह भी हो गए, तो अब अंडरस्टैंडिंग बेटर हो गई है, अभी ज्यादा ऑब्वियस लग रहा है. इज इट क्लियर? क्लियर है? व्हाट वाज टाइट्रेशन? सो दिस टाइट्रेशन वाज व्हाट? इट वाज एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, right? Now instead of acid based titration, now what will we be doing? We'll be getting into a new titration which is exactly same, उसमें कोई चेंज नहीं है ना. हम एक नई टाइट्रेशन में जाएंगे which is called as redox titration, right? So what is redox titration? उसमें एक ले लेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक ले लेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, है ना. बेस की जगह ले लेंगे लेट्स से रिड्यूसिंग एजेंट, है ना. एसिड की जगह ले लेंगे ऑक्सीडाइजिंग, जो मर्जी ले लो बेसिकली, राइट? इज इट क्लियर? क्लियर है ये बात, है ना जी? तो मतलब यहाँ पर कर लेते हैं. इनफैक्ट वी कैन राइट एज अ नोट, सिंस वी आर डूइंग थिंग्स, वी कैन राइट एज अ नोट कि एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर सेम थिंग्स, है ना. सिमिलरली बेस एंड रिड्यूसिंग एजेंट आर सेम थिंग्स. तो हमने एसिड डेफिनेशन क्या ली थी, धीरे धीरे इसको और इंप्रूव करेंगे. व्हाट वाज एसिड? which gives out H plus, that was acid. Or what was acid? which accepts OH minus, sorry, yeah, yes, that was acid. भाई बेस क्या था? जो OH माइनस निकाले, याद है नौटंकी? बेस क्या है? NaOH, जो OH निकाले, है ना. और अगर 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 वो OH खा रहा है तो वो क्या है? जो अगर OH खा रहा है तो वो एसिड होगा, क्योंकि OH निकालने वाला बेस है. और अगर वो H खा रहा है तो वो क्या होगा जी? H निकालने वाला तो एसिड होता है, तो H खाने वाला क्या होगा? बेस. ये डेफिनेशन थी हमारी एसिड बेस की. Clear है? अब there is one more definition which we are entering into. That is what? Anything which loves electrons is an acid. Anything which loves electrons is an acid. Anything which gives out electrons is a base. Clear है बात, है ना. कोई भी इलेक्ट्रॉन, लुइस एसिड, लुइस बेस बोलते हैं इसको. दिस इज कॉल्ड एज लुइस एसिड. लुइस नाम के आदमी ने बनाया था, ये सबसे लॉजिकल बात है. लुइस एसिड, दिस इज लुइस बेस. ये क्लियर है? तो लुइस ने ऐसे सोचा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन खा रहा है तो वो क्या है? एसिड. और कोई भी इलेक्ट्रॉन खा रहा है तो वो खुद रिड्यूस हो रहा है. याद है? जो भी इलेक्ट्रॉन खाता था वो खुद रिड्यूस होता था. दैट वाज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये क्लियर है? कोई भी इलेक्ट्रॉन निकालता था वो खुद खुद जो ऑक्सीडाइज होता था. याद है? जो भी इलेक्ट्रॉन निकालता था वो खुद ऑक्सीडाइज होता था, और दूसरों में इलेक्ट्रॉन भर रहा है तो दूसरों को रिड्यूस कर रहा है. और क्योंकि वो दूसरों को रिड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रॉन भर भर के, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? रिड्यूसिंग एजेंट. क्लियर है ये बात? इज इट क्लियर? राइट. सो ये कहानी बिल्कुल सेम ही है. इट इज एग्जैक्टली सेम थिंग्स यू आर डूइंग अगेन विद न्यू कपड़े. ऐसे हो गया ऐसा. सेम क्वेश्चन विद न्यू कपड़े. नाउ लेट मी जस्ट कॉपी पेस्ट द क्वेश्चन यू हैव ऑलरेडी रिटन इन योर कॉपी. I don't want to scroll up and down again and again, so I'll just copy paste this question again. So let's get back to this question. It's exactly the same question. Biल्कुल same question है. All right. So what is given in this question? It says 20 ml of H2O2, 20 ml of H2O2 solution is required, है ना, to titrate 30 ml of KNO4. तो इसका वॉल्यूम बता दिया कितना है, और KNO4 बता दिया कितना M/10 है, और H2O2 कितना रिक्वायर्ड 20 ml. तो सेम है. टाइट्रेशन फ्लास्क में इस बार 3 बार पिपेट से, पिपेट नाम की एक लंबी सी ट्यूब होती है ना. तो यू नीड टू यूज द सक्शन क्रिएटेड यूजिंग योर माउथ. और वो 10 ml की भी पिपेट होती है जनरली. केमिस्ट्री की लैब में कभी पदार्पण करो गलती से, जब भी कोरोना खत्म हो जाए, पता नहीं कब होगा, 2 साल तक तो नहीं होने वाला वैसे मेरे हिसाब से. लोग 6-6 महीने गुनगान गा रहे हैं. आई डोंट थिंक. इट्स अ 2 year टॉर्चर नाउ, अनफॉर्चुनेटली. मतलब इट इज नॉट टॉर्चर टू स्टडी लाइक दिस, इट इज टॉर्चर टू स्टडी एट होम एक्चुअली. ना कौन घर में मतलब चिक चिक सुने मम्मी पापा की, सर पे आ जाते हैं, फिर सब सवाल पूछते हैं तेरा सिलेबस हो गया. एक ये सवाल पूछने में ना, मतलब माँ बाप को ना चुटकी लेने में बहुत मजा आता है बेसिकली ना. जब कोई कुछ काम ना हो, टाइम पास करने के लिए आ जाएंगी मम्मी, बेटा तेरा सिलेबस हो गया, है ना, नहीं हुआ, हमें पता है तेरा नहीं होने वाला कुछ भी, है ना. और जब पता ही था आपको कुछ नहीं होने वाला तो आपने बताया क्यों नहीं? हम छोले भटूरे की दुकान खोल लेते, है ना. व्हाट इज द प्रॉब्लम, है ना. तो मतलब द होल प्रॉब्लम इज टू स्टडी एट होम, है ना. कि वो सर पे आते हैं, 2-3 भूत हैं सर पे सवार होते हैं, गलती से बड़ा भाई हो गया तो वो और एक और, उसका उसका ये उसका भी उसके भी अपने नखरे चलते हैं. वो ये बहुत टॉर्चर करता है बेसिकली. तो बचपन में करा तो होगा ऐसे काम, तो करे होंगे बेसिकली. जब उसका मूड खराब तो चाटा मार दिया, खत्म.
है ना, तो ऐसी ऐसी कहानियां करते हैं जनरली बड़े भाई बहन जो है, तो इट इज फाइन, राइट. सो वी हैव अ पर्पल सोल्यूशन, KMnO4 इज अ पर्पल सोल्यूशन, you have 30 ml, है ना जी, 30 ml चल रही कहानी m/10. देखो देखो ये सब बोरिंग कहानी है, मतलब आई हेट केमिस्ट्री फ्रॉम द कोरेस्ट कोर ऑफ माय हार्ट, है ना, नॉट इवन द डीपेस्ट कोर, है ना, इट इज द कोरेस्ट कोर. समझो, मतलब मैंने अंग्रेजी की इसी तरह से कर दी. तो वी हैव टू स्टडी इट एट द मिनिमम लेवल, मिनिमम मेहनत करके मैक्सिमम एफिशिएंट तरीके से काम करना है, दैट इज द फीलिंग, राइट. द KMnO4 इज कॉल्ड एज सेल्फ इंडिकेटर. KMnO4 डाल दिया यहाँ पर, है ना, ऊपर से क्या डाला है जी, ऊपर से डाला है H2O2, ये जी H2O2 आ गया. H2O2 is not orange in color, but I just made H2O2, और I can probably make it white, है ना. तो ये कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है इसका, 20 ml वॉल्यूम रिक्वायर्ड है ना जी. तो KMnO4 की बात करें, ये ऑलरेडी स्टडी अबाउट KMnO4. MnO4 माइनस आयन इज पर मैग्नेट आयन, है ना. MnO4 माइनस आयन की स्टेट होती है पर +7, राइट. ये +7 होती है स्टेट. हाउ डू यू नो +7? ऑक्सीजन पे स्टेट होती है -2, है ना. ऑक्सीजन की स्टेट अगर -2 है तो -2 into 4 इज -8, -8 में से एक बचाना है, तो -7 को न्यूट्रलाइज करना है, -7 को उल्टा +7, right. +7 purple, so this is purple colored solution. It is called a self indicator. It is called a self indicator, right. Why is it a self indicator? तो ये बहुत सारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री साथ साथ हो रही है हमारे, राइट. ये मेरे इसकी मेमोरी जो है निपट गई है. वेट अ मिनट, लेट मी जस्ट ट्राई, एंड आई जस्ट लव माय Fujitsu machine so much that I'm not